Hello everyone. Hello. I actually wanted to share a few things today because I normally do not come forward and open up my mind, but today I thought I'll share this with you all. मैं आपसे कुछ चीज़ों को बाँटना चाहता हूँ। आमतौर पे मैं इतना आगे आकर बाँट नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे मन में जो मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ। This morning, at home, I told my wife that, I'll drop you and the kids at the church and then I'll come back home and pray because um, something was not right. Uh, because I was not sure whether this is the right church for us. और मैं जब आज सुबह ही मेरी पत्नी और बच्ची इसको मैं मेरी पत्नी से कहा कि मैं आपको कलीसिया के अंदर वहाँ पर मैं आपको दूँगा, वहाँ पे छोड़ दूँगा और वापस आऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो सही नहीं थी मेरे अंदर। इसलिए मैं सोच रहा था मैं घर पर बैठकर ही प्रार्थना करूँगा कि इस कलीसिया में मुझे किस तरह यदि मुझे जाना है नहीं उस प्रकार विचारों के साथ। So I came here, dropped my children and wife, and then I thought of going back home. और मैं यहाँ पर आया, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ पर मैंने छोड़ा और मैंने सोचा कि अब मैं वापस लौट जाऊँगा। So, but then and then my wife and children came inside, and I was standing outside looking for a rickshaw to go back home. और यहाँ पर मेरी पत्नी और बच्चे जो कलीसिया भीतर, अगर मैं बाहर जाकर कुछ देख रहा था कि मैं उसको लेकर बाहर घर पर जाऊँ। But then something pushed me, and something pushed me inside the church, and I came and और sat. कुछ ऐसा हुआ कि जो मुझे भीतर से एक ऐसा एहसास हुआ कि मैं भीतर जाऊँ और मैं फिर घर जाना छोड़कर मैं कलीसिया में वापस आकर बैठ गया यहाँ पर। The first word I heard was, "Do not go back." पहला वचन जो मैंने यहाँ पर सुना वो ये था कि तू वापस लौट कर मत जा। This is not the time to leave. That's what Brother Abu said. और जब भाई अबू ने कहा कि ये समय नहीं है अब जाने का या छोड़ने का। And submit yourself. Doesn't matter अपने आप what you think is right or wrong, submit yourself is what he said. और जैसे भाई अबू ने कहा कि इस यदि क्या गलत है क्या सही है वो नहीं, लेकिन अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को अधीनता में लेकर आओ। So the reason all these thoughts were running through my mind was because we were going to Bethany Baptist Church in Bangalore, and then we were used to that church for the past 7 years there, and और we had. ये का या- ये कारण था कि जिस कारण से मैं ये विचार मेरे मन में आ रहे थे कि पिछले 7 सालों से एक बैथनी बैप्टिस्ट चर्च जो बैंगलोर में है उसको उसमें हम जाया करते थे। And not only that, before that, when we were in Hyderabad, we went to the Anglican service, Anglican church there in Hyderabad. और उसके पहले भी जब हम हैदराबाद में थे एक एंग्लिकन कलीसिया थी, वहां पर हम जाया करते। And I felt at peace whenever I went to the Hyderabad church and Bangalore church. और जब कभी मैं हैदराबाद या बैंगलोर कलीसिया में जाता मुझे भीतर से एक शांति लगती। But here, I was not getting that, uh, you know, um, peace in my heart. और यहाँ पर जब मुझे वो शांति मुझे महसूस नहीं हो रही थी मेरे हृदय में। So I don't want to go deep into what my mind is thinking, but then today I had a lot of clarity. Um, और and मैं इसमें बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता था कि मेरे मन में क्या-क्या विचार आ रहे थे, लेकिन आज के वचन से मुझे एक साफ वचन मुझे आज प्राप्त हुआ। and it's not because my mind is rebelling, but I was used to a different thought process. और ये इसलिए नहीं कि मेरे मन के अंदर बलवा करने के ही विचार थे, ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक अलग विचारधारा या विचार थे। And I strongly believe और मैं ये बहुत ही मजबूती से विश्वास करता हूँ it is the Lord that spoke through Brother Abu today. और भाई अबू के द्वारा परमेश्वर ने आज मुझसे बात की है। That gave me a lot of clarity in my mind. मेरे मन के अंदर बहुत सारी उसने बहुत सफाई या उसने साफ निर्देश मुझे दिया है। So thank you, Brother Abu, for that, and the church. और कलीसिया का भाई अबू का मैं धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। And so that's what I want to share. But before that, I was thinking whether to come to the stage and speak. So I looked at my wife, and she was smiling. She was not looking at me, but she was smiling because she also know that what went through my heart. And then I thought it is और इस better I share it with everyone here. Thank you.
और इससे पहले कि मैं यहाँ पर आने के लिए मैं निर्णय ले पाता कि मैं यहाँ पर आऊं या नहीं, मेरे पत्नी को देखा, उसने मुस्कुराया मेरी तरफ। वो भी जानती थी कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे, किस बात पर। उसको देखकर मुझे एक प्रोत्साहन मिला और मैं आगे आके यहाँ पर बांट पाया। Thank you. धन्यवाद। In my early married life, I thought I am a very submissive wife. और मेरे शुरुआती के मसीह जीवन में मैं ऐसे सोचती थी कि मैं बहुत ही एक अधीन रहने वाली स्त्री हूँ, एक पत्नी हूँ। And after some years, always I hear this from the church to submit to your wife, husband. और बहुत सालों तक मैंने ये बात सुनी कि अपने पत्नियों ने अपने पतियों के अधीन में रहना है। Then I started asking God, Lord, where I am not submissive to my husband. और फिर मैंने प्रभु से इस प्रकार से पूछना आरंभ किया कि मैं कहाँ पर अपने पति के अधीन में नहीं रह रही हूँ। Then God started showing me one by one each area I am not submissive to my husband. उसके बाद परमेश्वर ने एक एक जो क्षेत्र है वो मुझे दिखाना आरंभ किया कि मैं कहाँ पर अपने पति के अधीन में नहीं हूँ। So recently 2 weeks back also when we were going to Hyderabad, और हाल ही में हम कुछ समय पहले 2 हफ्ते पहले हैदराबाद में जब हम यात्रा कर रहे थे, so I asked what time we had to leave to go to station. और मैंने इस प्रकार से पूछा कि कौन से समय में हमें जाना है स्टेशन की ओर। So every time wherever we are going to the airport or station, there is a discussion with us. So जब कभी मुझे स्टेशन पे जाना है या कहीं पर भी जाना है तो हमारे बीच में एक बातचीत होती है। My husband wants to go early, but I want to reduce that time to change that time little more later. लेकिन मेरे पति को जल्दी जाना होता है, लेकिन मुझे थोड़ा उस समय को और अगर थोड़ा सा समय बाकी है उस समय मुझे जाना होता है। Then when he said this time we will leave, so then immediately asked, so early? और अगर वो पूछते हैं कि हमें अभी निकलना है तो मैं इस प्रकार से पूछती हूँ ये तो बहुत जल्दी है। So then he replied to me. फिर वो मुझे इस प्रकार से उत्तर देते हैं। Then immediately God spoke to my heart. और तुरंत ही उसी क्षण में परमेश्वर मेरे हृदय से बात कर रहे थे। Why can't you submissive to your husband in this matter? तुम क्यों नहीं मेरे अपने पति के अधीन में रहती हो ये विषय में? Why can't you be ready the time when he says that for that time? और तुम अगर वो उस समय को तुम्हारे पति कह रहे हैं उस समय तुम क्यों नहीं तैयार हो उस बात को मानने के लिए? Then I told my God, Lord, I wanted to be ready always when the time which he says to me. और फिर मैंने प्रभु को इस प्रकार से कहा कि प्रभु मेरे पति मुझे जब कभी कहते हैं जाने के लिए मैं तैयार होंगी जाने के लिए। You help me in this matter. प्रभु आप मेरी सहायता करें ये विषय में। So and another area which God showed me in relation with my elders. और एक और क्षेत्र है जो मेरे जो प्रधान है उनके साथ का जो रिश्ता है उसके क्षेत्र में भी प्रभु ने मुझे दिखाया। Till 3 years back, whenever I share, I will share whatever in my heart, full. और 3 साल पहले जो कुछ मेरे हृदय में होता था वो मैं बांटती थी। I don't see the time. और मैं समय को नहीं देखती थी। And I was thinking like this, I am not sharing every week, so it's okay if I take more time. और मैं इस प्रकार से सोचती थी कि हर हफ्ते में मैं नहीं बांटती हूँ तो ये चलता है कि मैं और समय को ले लूँ। But God showed me that your whatever your elders saying, the time you should submit to that time. लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से कहा कि जो भी तुम्हारे जो प्राचीन तुमको समय देते हैं उस समय के अधीन में रहते हुए तुम्हें समाप्त करना है। That is the submission to your elders.
और यही है हमारे प्राचीन के अधीन में रहना। It was very difficult for me, so I asked Lord, I need your help. I don't want to share anything for my glory. और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन मैं परमेश्वर से कहती थी कि प्रभु मुझे मदद कर कि मैं आपकी महिमा के लिए बांट पाऊं। I want to share for your glory. और मुझे जो बांटना है वो प्रभु आपकी महिमा के लिए बांटना है। So help me, Lord, to keep that time. और प्रभु मुझे सहायता कर कि वो समय मैं उसी समय के अंदर समाप्त कर पाऊं। So then God helped me that you prepare very little. You don't need to say everything. You say what in that time. तो प्रभु ने मुझसे इस प्रकार से कहा कि तुम्हें थोड़ा सा ही उसको तैयार करना है, ताकि जो उस समय के अंदर तुम उसको बांटकर समाप्त कर पाओ। If it is for God's glory, I can stop at any time. और अगर ये परमेश्वर की महिमा के लिए है तो मैं कोई भी समय पर उसको रोक सकती हूँ। So really, in many areas, I want to ask God, and then only if I am having a need to know that where I am not submissive to my husband or authorities, which God has placed over me, when I ask only God can show me. और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, मुझे परमेश्वर को मुझे दिखाना होगा कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो मैं अपने पति के या फिर प्राचीनों के अधीन में नहीं हूँ। परमेश्वर अगर मुझे दिखाएंगे तो मैं उस विषय में अधीन परमेश्वर के और उनके रह पाऊंगी। I desire God to show me more and more in my areas which I am not submitted to these authorities. और मेरी चाहत ऐसी है कि परमेश्वर मुझे दिखाए कि कौन सी ऐसे क्षेत्र हैं मेरे जीवन में जो मैं अपने जो अधिकार के लोग हैं उनके अधीन में नहीं हूँ। सिस्टर लिजी ने जो शेयर किया था वो सेम एक वर्ड टू वर्ड मैंने मेरा वाइफ से शेयर किया था। जो भी सिस्टर ने कहा वो सेम मैं पूजा से वही बोल रहा था। मैं शेयरिंग करने आता है तो टाइम जाता है, इतना टाइम लेता है सब। थैंक यू सिस्टर फॉर शेयरिंग व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और मैं थोड़ा बांटना चाहता हूँ। मैं पूरा गया हफ्ता मेरा जीवन जांच रहा था, तो जब सारा ग्रेसी छोटी थी तो उनका डायपर हम लोग चेंज करता था ऐसे। तो बहुत छोटे थे, क्या कितना बार भी चेंज करेगा तो हमको प्रॉब्लम नहीं होता था, रात में दिन में कभी भी हमें कभी तकलीफ नहीं हुआ। मैं देखता था, कभी मैं भी चेंज करता था। तो फिर ये सोचते हुए मैंने मेरा जीवन को जांचा। वो मुझे गुस्सा नहीं आता था वो टाइम पे कि बच्चे छोटे थे, इट इज़ नेचुरल। जब ये थोड़ा बड़ा होने लगा तो अगर वो टाइम करेगा तो मुझे गुस्सा आता था। ऐसा नहीं किया, उन लोग ने नहीं किया, करते थे क्या जब भी बड़ा हो जाएगा बच्चा तो उनको डायपर का ज़रूरत नहीं होता है, और वो टाइम पे अगर बच्चा करता है तो हमें गुस्सा आएगा। तो ये मैं मेरा जीवन जांच रहा था। तो जब मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ, मैं जब नया क्रिस्ती था तो मैं भी ज़रा पाप में गिरता था। वो टाइम पे अगर मेरा एल्डर या कोई पास्टर है वो देखता था, रे तो नया क्रिस्ती है तो इसको समझाएंगे हम लोग कैसा होना है। फिर अभी मुझे इस कलीसिया में बहुत साल हुआ है, पॉटर्स में बहुत साल हुआ था। अगर आज मैं पाप करता हूँ और जब परमेश्वर मुझे जांचता है, अरे इसको अभी मेरे को डायपर पहनाना पड़ेगा, तो ये कैसा लगेगा मुझे। यानी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, इतना मुझे बाइबल जानता हूँ, चर्च में कितना सुनता हूँ ऐसा हमारा मैसेजेस, और उसके बावजूद अगर मैं पाप में गिरता हूँ तो परमेश्वर हमेशा कहता है इसे अभी भी डायपर पहनने का ज़रूरत है। और मैं जब मेरे बच्चे लोग को देखता हूँ और मेरा जीवन देखता हूँ तो अगर आज उन लोग कुछ करते हैं, मुझे उनको डायपर का ज़रूरत पड़ेगा तो हमें गुस्सा आएगा, अरे आप इतने बड़े हैं तो आपको डायपर का ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह परमेश्वर मुझे कहता है आप अभी क्रिस्ती जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और अगर पाप करते हैं, कुछ गलती करते हैं, अगर मुझे आज आपको डायपर पहनाना है तो परमेश्वर को भी बुरा लगता है। तो मेरा जीवन जांच रहा था मैं अभी, तो जो भी मुझ में कमियाँ है जो ठीक नहीं है तो उसे मुझे ठीक करना है। और कोई मुझ में अगर कुछ बुराई दिखेगी तो आपको पूरा अधिकार है मुझे बोलने के लिए। थैंक यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए कि अधीनता का मन, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी अधीन में रहना पसंद नहीं करेगा।
मैं देखता हूँ कि यदि मैं अपनी पत्नी के अधीन में रहूँ तो मेरा दिल एकदम वो हो जाएगा कि मैं क्यों अधीन में रहूँ। मैं ऑफिस में जाता हूँ, फिर बाद में घर में इनका सुनो, तो अधीन में रहना सही में किसी का ऐसा दिल नहीं करेगा कि मैं अधीन में रहूं। लेकिन जब मैं सोच रहा था बैठ कर के, अगर मैं ऑफिस में जाता हूं और कोई ऑफिसर जो मेरा अधिकारी है वो मुझे बुलाता है कि हरीश इधर आओ, तो मैं तुरंत दौड़ के जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर पैसा मिलता है। बहुत जल्दी अधीनता का मन हो जाता है। लेकिन आज मेरा प्रभु मुझसे बातें कर रहा है कि क्या तुझे अधीनता में रहना पसंद है? क्या तू तैयार है अधीनता में रहने के लिए? और हर एक के जो वचन आता है तो हम सबके मन में ये आता है। सच में क्या हम लोग अधीनता में रहते हैं? अपने आप को जांचेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अधीनता में नहीं हैं। हम लोग अपने मन से ही सब कुछ करना पसंद करते हैं। एक वचन है दूसरा पतरस 3:9, वहाँ पे लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये सब के मन फिराव का अवसर मिले। तो आज हमारा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि आज हमें मौका है मन फिराव करने के लिए। आज हमें मौका है अधीनता रहने के लिए। यदि हम अधीन में रहेंगे अपने एल्डरों के, हम अधीन में रहेंगे अपने प्रभु के, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। अगर हमारे जीवन में ये बदलाव नहीं आएगा तो हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी। मैं कल सुबह में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पढ़ रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने वहाँ पर देखा कि हमारा मन किस तरह से एक विचलित हो जाता है। वहाँ पर जो सदूकी, जो फरीसी लोग हैं, प्रभु यीशु से वाद विवाद कर रहे थे कि तेरे अपना शिष्य लोग बिना हाथ धोए, मतलब परंपराओं की बातें कर रहे थे कि बिना हाथ धोए रोटी खा रहे थे, खाना खा रहे थे। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ही सिखाया कि जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं वो सब कुछ निकल जाता है, लेकिन जो हमारे मन के अंदर से बाहर आता है वही हमको अशुद्ध करता है। तो ये वहाँ पर भी मैंने सोचा कि सच में कि हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है और वही हमको अशुद्ध करता है। खाने पीने से हमारे अंदर कोई अशुद्धता नहीं है। तो हमारे जीवन में जो आज हमें सिखाया है कि अधीनता का मन रहना, यदि हम, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है कि हमें पिता के अधीन में रहना है, तो आज भी हमें भी अधीनता में रहना है, प्रभु के चरणों में रहना है, आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, सिखाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि यदि प्रभु कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। तो आज हमें एक अवसर मिला है, प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें अधीनता में रहना है। तो मैं अपने आप को जांचना चाहता हूँ और जांचा भी मैंने, और मैंने प्रभु से मांगा कि सच में प्रभु मैं एक अधीनता का मन रखना चाहता हूँ और पूरे हृदय से, पूरी सच्चाई से, पूरे मन से। तो वहाँ पर मुझे तीतुस 2:12 अध्याय मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो अब हमें ज़रूरत है अपने मन को बदलाव लाने की, और ज़रूरत है हमें अधीनता में अपने आप को लाने का, क्योंकि परमेश्वर जो हमें एक मौका दिया है वो नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निश्चित है और वो जल्दी आने वाला है, और हमारी आशा, हमारा भरोसा केवल उसी पर होना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इन वचनों के द्वारा हमारी मदद करे और हम सबको एक दूसरे की अधीनता में रहने का जो हमें एक सिखाया है, मौका दिया है, हम सब अधीनता में रहें और परमेश्वर हमारे जीवन में, सबके जीवन में काम करे। आमीन। थैंक यू। As we heard, that submission is something which is not so natural to us. जैसे हमने सुना कि अधीनता में जीवन बिताना ये स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से हमसे नहीं हो पाता है, And it is something I also struggle with. और ये ऐसी बात है जिसके साथ मैं भी कई बार संघर्ष करता हूँ। And something which I find in my heart when I deal with this issue is, जब इस
ये समस्या के साथ मेरे हृदय में व्यवहार करते समय मैं इस प्रकार पाता हूँ that I have a tendency to speak everything, like give a response to everything which is not required sometimes. और जो चीजें जहां पर होती है वहां पर हर चीजें बोलना मैं चाहता हूँ, शायद वो प्रत्युत्तर वहां पर आवश्यक नहीं होता है फिर भी। And like it says in Titus chapter 2, verse 9, तीतुस 2:9 में लिखा है, it says, urge bond slaves to be subject to their own masters in everything, to be well pleasing. दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे। So I have to be well pleasing to people who are in authority. और जो अधिकारी मेरे ऊपर नियुक्त के उनके लिए मुझे प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बनना है। I should not be a person who always wants to say something or cause difficulty in something they want to implement. और ऐसी जो चीजें जो वो वहां पर इम्प्लीमेंट या वहां पर करना चाहते हैं उसके विरोध में जाकर मैं कोई ऐसी बातें करूं। It says not argumentative. और वहां हिंदी में वहां लिखा है कि उलट कर जवाब न देते हुए। Because I should not have a tendency to keep on arguing and discussing, and when they say something, it's good to go down and say, yes, I will do it. यदि वो कुछ कहते तो वहां पर विवाद करने वाला, उल्टा जवाब देने वाला ऐसा रवैया ना हो, लेकिन यदि कुछ कहते तो पूरी तरह से नीचे जाकर उस बात को करने के लिए तैयार होना है। Especially when it comes to where I have made a mistake, better than saying that no, it was somebody else did this, then I did this. It is better to say that no, yeah, it's my fault. और खास करके ऐसी जगह पर जहां पर मैं अपने आप से, जब मैंने गलती की हो, यहां तक कि वहां क्या इसने या उसने किया, अपनी गलती को मान लेना वहां पर अच्छी बात होगी। So we live in a atmosphere where everybody wants to shift the blame to somebody else. ऐसे वातावरण में हम रहते हैं जहां हर कोई अपनी दोष या गलती किसी और पर थोपना चाहते हैं। And somebody is trying to shift their blame to us, we can say that yes, it is also my fault. और यदि कोई अपने दोष या अपनी गलतियां हम पर डालने की कोशिश भी यदि करते तो हमें वहां पर उसको स्वीकार करके कहना है कि हाँ, ये मेरी गलती है। And we can ask God to create that heart in us where we will be humble in heart. हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु हमें एक नम्र हृदय दे, जहां में हृदय में नम्र होना है। Jesus said, come to me, all you who labor and heavy laden. यीशु मसीह कहता है, तुम सारे बोझ से दबे थके हुए लोगों मेरे पास तुम आओ। And I will teach you to be humble in heart. और मैं तुम्हें हृदय में नम्र होना सिखाऊंगा। Then that all that frustration of submitting and all that burden of submitting will go away, and you will find rest in your heart. और तब हमारे जीवन में जो पाई जाने वाली जो अधीनता में रहने के लिए जो संघर्ष होता है, जो कुड़कुड़ाना, ये सारे दबाव जो होता है, वो सारी चीजें दूर हो जाएगी। And we can willingly say, Lord, I'm happy for the people who are placed above me, because you have planned everything. It is not somebody who is doing that, but God. We can see God's hand above that, who is above my boss. तब हम बड़ी स्वेच्छा से अपने आप को वहां पर समर्पित करेंगे, ये कहते हुए कि प्रभु, ये किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन तूने उस बॉस को, उस अधिकारी को मेरे ऊपर नियुक्त किया है। And we will accept that. First thing is accepting that God is the one who has placed somebody above me. और ये सबसे पहले परमेश्वर, इस चीज को हम ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, वो परमेश्वर है जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर उस अधिकारी को नियुक्त किया है। It says somebody who rebels against authority is rebelling against God. और जैसे हमने सुना कि जो अधिकारी के विरोध में बलवा करता है, वो परमेश्वर के विरोध में बलवा करता So I है। don't want to rebel against God. और इसलिए मैं परमेश्वर के विरोध में बलवा नहीं करना चाहता। Yeah. We'll just pray. हम प्रार्थना करेंगे। Brother Kiran, you can pray. धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं हमारी अपनी स्वयं की जरूरतों को लेकर, जहां पर हम अब भी प्रभु उस अधीनता के स्वभाव के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र के अंदर, चाहे घर में, कलीसिया में, दफ्तर में, प्रभु जहां कहीं प्रभु हमारे अंदर वो अधीनता की आत्मा नहीं, प्रभु हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो नम्र स्वभाव तू पैदा कर, जिससे कि प्रभु हम अपने आप को उस अधीनता में लाने के लिए अपने आप को सौंपने पाए। प्रभु हमारी मदद कर, वो नम्रता से भरा हुआ हम देखने पाए कि सारा अधिकार परमेश्वर द्वारा हमारे ऊपर नियुक्त किया गया, उसके द्वारा, और जो परिस्थितियां परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में नियुक्त की गई है प्रभु जी, अलाउ की गई है, उसके अधीनता में भी अपने आप को सौंपने के लिए, जिससे कि तू हमको तोड़कर नम्र बना सके और हम उस अधिकार के अधीनता में होना सीख सके। जैसे यीशु मसीह पूरी तरह से पिता की अधीनता में था प्रभु,
प्रभु वैसे ही प्रभु हमें भी ऐसा मन और हृदय दे प्रभु। इस वचन के अनुसार हम अपने आप को जांच कर तेरे सामने अपने आप को रखते प्रभु। हम सभी भाइयों और बहनों की मदद कर, हमारे घर से शुरुआत करके सबसे पहले हम अधीनता का जीवन सीख सके और तेरी महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।